بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والد ماہر کاریگر تھے، مدت سے ایک مشہور سنار کے پاس کام کرتے تھے۔ زیورات میں نگینے جڑنے کا کام برسوں کیا۔ ان کی ہنرمندی کا شہرہ پوری صرافہ مارکیٹ میں تھا۔ تبھی بڑے بڑے صراف جن و موزوں کو کام سکھانا ہوتا ان کے پاس بھجواتے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ پتھر کو بھی ہیرا بنا دیتے ہیں۔ کمال انہی میں سے ایک نوآموز جوان تھا جس نے میٹرک پاس کیا تو اس کا باپ اس کو ابو کے پاس لے کر آیا اور منت کی کہ استاد میرے بیٹے کو بھی ہنر سکھا دو، خود روزی روٹی کمانے کے لائق ہو جائے گا، میں عمر بھر آپ کو دعائیں دوں گا۔ والد نے کہا تم اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں سیٹھ کے کارخانے جاتا ہوں، اس کو بھی ساتھ لے جایا کروں گا۔ لڑکا گاؤں کا تھا، سیدھا سادھا اور شریف۔ والد نے اسے اپنے مکان کے سرونٹ کوارٹر میں رکھ لیا۔ والد کام پر جاتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگے۔ چند دن بعد لڑکے کو تسلی دی اور کہا کمال تم میں سیکھنے کی لگن ہے، تم تو جو بھی کام کرتے ہو اگر یوں ہی لگن سے سیکھتے رہے تو جلد ماہر ہو جاؤ گے۔ استاد کی ہمت افزائی نے کمال کا حوصلہ بڑھا دیا۔ وہ اور زیادہ محنت کرنے لگا۔ وہ زیادہ توجہ اور محنت سے نگینہ سازی سیکھنے لگا۔ والد بھی اس کی لگن سے خوش ہوئے۔ اکثر امی سے کہتے کہ یہ بڑا نیک بچہ ہے، دیکھ لینا ایک دن اس ہنر میں طاق ہو جائے گا اور نام پیدا کرے گا۔ والد اس سے پیار کرتے اور اس پر اعتبار کرتے تھے۔ سرونٹ کوارٹر میں ایک کمرہ تھا جو گیٹ کے پاس باہر کی جانب تھا۔ کمال کو اکثر کسی کام کے لیے گھر کے اندر بھی بلا لیتے تھے، تاہم اسے گھر کے اندر آتے ہوئے شرم آتی تھی۔ گردن جھکائے رکھتا، تمام وقت آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اس کی یہ ادا امی کو بھا گئی۔ انہوں نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ ہم 4 بہنیں تھیں، سامنے ہوتی تو گھر میں کمال قدم نہ رکھتا، نظریں جھکائے برآمدے سے باہر کھڑا رہتا، جبکہ والدہ پکارتی رہتی کمال بیٹے ارے ادھر تو آؤ، نزدیک آ کر میری بات سنو، مگر وہ ایک قدم آگے نہ بڑھاتا۔ تب امی ہمیں حکم دیتی کہ اندر چلی جاؤ، یہ بہت شرمیلا لڑکا ہے، تم لوگوں کی موجودگی میں نہیں آئے گا۔ باجی اور سریا بھی ان دنوں جوان تھی جبکہ میں 13 برس کی تھی اور 7ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی جو ابھی 5ویں کلاس میں تھی۔ وہ ہم دونوں سے بات کر لیتا مگر آپی اور بجیا سے بالکل بات نہ کرتا، یہ تو ہم سے پردہ کرتا ہے۔ حالانکہ ابو سے فخر چچا کی دور کی رشتہ داری بھی ہے، دور کی بھی رشتہ داری تھی، تبھی امی ابو نے کمال کو ماں باپ جیسی محبت دی۔ وہ ہمارے گھرانے میں گل مل گیا اور ایک فرد جیسا ہو گیا۔ ابو جب گھر پر رات کو آتے تو کمال ساتھ آتا۔ اکثر ابو اس کو رات کے کھانے پر اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ امی سے کہتے کہ پردیسی ہے، اس کے ماں باپ گاؤں میں رہتے ہیں، یہ گھر سے دور ہے، سعادت مند اور شریف ہے، میرا کھانا اس کے ساتھ لگا دیا کرو۔ یوں ہم امی کے ساتھ، کمال والد کے ساتھ کھانا کھانے لگا۔ کمال کی سعادت مندی سے ابو اتنے خوش تھے کہ امی کو بار بار ہدایت کرتے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب وہ چاہتا ابا کے کمرے میں بھی چلا جاتا، ان کے ساتھ گپ شپ کرتا، وہ دونوں مارکیٹ کی باتیں کرتے۔ جب کمال وہاں موجود ہوتا ہم ابا کے کمرے میں نہیں جاتے تھے، تاہم والدہ اس کا سگے بیٹوں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ میں اور سمیرہ چونکہ اس سے بات کر لیتے تھے اس لیے ہمیں منہ بولی بہنیں بنا لیا۔ ایک روز وہ ہمارے گھر کی کیاریاں صاف کر رہا تھا کہ سریا آپی نے کیاری میں دور سے ایک کاغذ پھینک دیا۔ کمال نے اٹھا کر دیکھا، کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ کمال میں تم سے بات کرنے کو ترستی ہوں اور تم ہو کہ بات کرنے کا موقع نہیں دیتے، مجھ سے بات کیا کرو۔ اس نے پڑھ کر پرچہ پھاڑ دیا اور مجھے کہا فائزہ اپنی آپی سے کہو یوں ہی کیاری میں کوڑا کرکٹ نہ پھینکا کرے، مجھ کو صفائی میں دقت پیش آتی ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہا تھا آپی سریا یہ بات سن رہی تھی۔ یہ سن کر ان کا دل دکھا اور وہ رو پڑی۔ کافی دن تک سوگواری سے چھائی رہی۔ پھر انہوں نے باجی سائرہ کو ساری بات بتا دی۔ باجی کمال کے پاس آئی، سریا کی طرف سے معافی مانگی اور آپی کی کمال سے بات کروا دی۔ یہ اصل میں آپی اور باجی کی ملی بھگت تھی۔ ہمارے ماں باپ کو بیٹیوں کی اس ضرورت کا علم نہ تھا۔ آپی کمال سے بات کرنے لگی۔ ایک روز انہوں نے کمال سے کہا تم میرے ساتھ بے رخی سے پیش آتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ یہ وجہ نہیں ہے، تم میرے استاد کی بیٹی ہو، میں ان کے لحاظ سے بات نہیں کرتا، میں شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتا کیونکہ ان کا بہت احترام کرتا ہوں، میں تم سے شادی کروں گی۔ سریا نے منہ پھاڑ کر کہہ دیا۔ یہ بات کمال کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح لگی۔ میں نے تمہاری دونوں چھوٹی بہنوں کو منہ بولی بہنیں بنایا ہے، بے شک انہیں بنایا ہے مگر مجھے تو نہیں بنایا۔
मैं अपनी बहन की दीदा दलेरी पर हैरान थी। डरती थी कि वो आइंदा ज़रूर कोई क़यामत लाने वाली है। घर में बेकार रहती थी। शायद इसी सबब उनके जहन में ऐसे ख्याल आते रहते थे। अगर पढ़ाई करती तो उनके पास ऐसी बातों के लिए वक्त कहाँ होता। ईद आ गई। बाजी और आपी बाजार चूड़ियाँ और मेहंदी खरीदने गई। अम्मी से नज़र बचाकर परफ्यूम भी खरीद लिया। ये तोहफा मुझे दिया कि कमाल को दे दो। मैंने इनकार कर दिया। तभी आपी ने मौका निकाल कर उसे दिया कि आपके लिए ईद गिफ्ट लाए हैं, लेकिन कमाल ने वापस कर दिया, जिस पर आपी इतनी दिल बर्दाश्ता हुई कि परफ्यूम पी लिया। हालत बिगड़ गई। उनको अस्पताल ले जाया गया। मैंने कमाल से कहा, देखो तुम्हारी वजह से मेरी बहन की ये हालत हुई है। अगर उस वक्त गिफ्ट रख लेते, बाद में मुझे दे देते, मैं वापस कर देती तो उनकी ये हालत ना होती। कमाल अफसरदा हुआ कि मेरी वजह से उस लड़की को इतनी तकलीफ होती है। मेरी बात का असर हुआ और कफ़े अफसोस मलने लगा। आपी सुरैया की सबसे बड़ी राजदार बाजी सायरा थी। उन्होंने कमाल से कहा कि तुम ईद पर गाँव जा रहे हो, अपने वालिदैन से कहना कि तुम्हारे लिए सुरैया का हाथ मांगे, वरना हमारी फुफ्फो रिश्ता मांग रही है, उधर बात पक्की हो जाएगी। हिम्मत न पड़ती, फिर भी कमाल ने अपनी माँ को रिश्ते के लिए कहा। वो ईद के तीसरे रोज़ बेटे के हमरा हमारे घर ईद मिलने के बहाने आ गई और दबे लफ्ज़ों में कमाल के रिश्ते का तज़किरा छेड़ा। अम्मी ने कहा कि सुरैया के लिए उसकी फूफी भी चक्कर लगा रही है, लेकिन हम पहले सायरा के बारे में सोच रहे हैं। वो बड़ी है और ख़ानदान में उसके जोड़ का कोई रिश्ता मौजूद नहीं है। कमाल की वालिदा ने गाँव जाकर बेटे को बता दिया कि वो सायरा का रिश्ता देने का इंदिया दे रहे हैं, सुरैया का नहीं। कमाल सुरैया की खुशी चाहता था। वो खामोश हो गया तो उसकी माँ ने दोबारा आकर बात ना की। बहरहाल अब्बू जान कमाल को अपना दामाद बनाना चाहते थे। कुछ इंतज़ार के बाद वो इसी सिलसिले में गाँव गए और कमाल के वालिद से कहा कि आप मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता ले लें, छोटी के लिए बहन को ज़ुबान दे चुका हूँ। कमाल के वालिद मेरे अब्बू को अपना मोहसिन समझते थे और मोहसिन खुद चलकर उनके पास आया था तो इनकार की गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने कहा कि आपकी बड़ी लड़की भी हमारे लिए वही मुकाम रखती है जो छोटी का है। सुरैया बेटी ना सही, सायरा सही, बच्चियाँ तो सभी एक सी होती है, मुझे कबूल है। कमाल को पता चला तो उसने सर पीट लिया, मगर बुजुर्गों की बात तो वक़्त रखती है, छोटे कैसे मनमानी कर सकते हैं। ये क्या गज़ब हो गया था। बुजुर्ग नहीं जानते थे कि सुरैया पर क्या बीतेगी। खुद बाजी सायरा भी इस रिश्ते पर हरासां थी, क्योंकि वही सुरैया की राजदान थी। बड़ों के मसले अपनी जगह थे और छोटों के अपनी जगह थे। उनको हमारे मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं थी और हमें उनकी परेशानी से कोई सरोकार नहीं था। लेकिन बड़े जीत गए, छोटे हार गए। कमाल की शादी बाजी सायरा से हो गई और इस गम में आपे सुरैया बीमार पड़ गई। हमारा कोई भाई न था और अब्बू को कमाल की सूरत में ताबेदार दामाद ही नहीं, फर्माबरदार बेटा भी मिल गया था। चचा ने बेटे को हुक्म दिया, कमाल अब तुम अपने सर के पास रहोगे। वो तुमको घर दामाद देखना चाहते हैं और मैं भी चाहता हूँ कि उनको तुम्हारे होते हुए बेटे की कमी महसूस ना हो। कमाल भाई फितरतन फर्माबरदार वाक़े हुए थे, किसी बात पर एहतजाज नहीं करते थे, दानिस्तान किसी को दुख नहीं देते थे। ताहम बाजी सायरा से शादी के बाद दोनों ही हमारे साथ रहकर सुरैया आपी को दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन वो ये बात अपने बड़ों को क्यों कर समझाते। अब मैंने जाना कि शादी हमारे माशरे में खुशियों का सौदा और 2 दिनों का मिलाप नहीं होती। ये तो एक रस्म, एक मशक्क़ती मजबूरी होती है। मजबूरी के इस तोड़ को सायरा बाजी और कमाल भाई ने इंतहाई शर्म और लिहाज के साथ अपने गले में डाला था। लेकिन अब सामने रहकर सुरैया आपी को अजियत पहुंचाना दोनों के लिए ही कठिन मरहला था। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो गांव चले जाएं, लेकिन उनकी बुजुर्गों ने एक न चलने दी। सुरैया आपी तमाम दिन कमरे में बंद रहती थी। उनकी बीमारी तूड़ पकड़ती गई और फुफ्फो इंतज़ार कर रही थी सुरैया सेहत याब हो तो रिश्ते को पक्का करने की बात करे, मगर वो बिस्तर से न उठ सकी और किसी को उनकी बीमारी समझ में न आ सकी। उनको जो मर्ज था वो लाइलाज था। बाजी और कमाल भाई कोशिश करते थे कि उनके सामने न जाए। एक घर में रहकर क्यों कर ऐसा मुमकिन था। सुरैया आपी एक अनदेखी आग में दिन रात सुलगती रहती थी। फुफ्फो ने दिल बांधकर बीमार भतीजी से बेटे की शादी की तारीख तय कर ली कि शायद वो शादी के बाद ठीक हो जाए, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। शादी से 2 हफ्ते कबल फुफ्फो को हार्ट अटैक हो गया। शादी मुलतवी हो गई। सायरा बाजी उम्मीद से थी उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, मगर बाजी नन्हे मुन्ने की पैदाइश पर जिंदगी की बाजी हार गई।
मुन्ने को सुरैया आपी ने उठाया तो जैसे उस मासूम वजूद को छूते ही उनमें जिंदगी की रमक लौट आई। रफ्ता रफ्ता उनकी सेहत बहाल होने लगी। हर दम तवज्जो नन्हे भांजे पर देने से गोया जिंदा रहने की ख्वाहिश लौट आई थी। अब वही उसको खिलाती पिलाती नहलाती थी, सारा दिन उठाए रखती, तोतली बनकर बातें करती। घर का हर फर्द हैरान था कि कैसे बाजी के नौज़ायदा में सुरैया ने खुद को गुम कर दिया था। उसी गुमशुदगी में उन्होंने अपने आप को पाया। वो तेजी से सेहतमंद होती गई। जर्द और बीमार चेहरा जो बेरौनक लिखता था फिर से ताज़ा गुलाब की मानित सुर्ख गुलाबी हो गया, और वो जो मुद्दा सी कमरे में बंद रहती थी बाजी के मरते ही जी उठी। अब उनकी जिंदगी नन्हे की परवरिश से मशरूत हो गई। किसी और से शादी क्यों कर सकती थी? कुदरत ने इसी तस्वीर को फिर से संवारा और निखार दिया था, जो कमाल भाई से बाजी सायरा की शादी हो जाने की वजह से मसख हो गई थी, जो मोहब्बत बर्फ की तरह जमकर उनके वजूद में पत्थर हो गई थी, पिघल कर नरम और तरोताज़ा और गहरी झील का रूप दहा रही थी। वालिदैन सुरैया की तारिक से शादी का सोच रहे थे और सुरैया बाजी के बेटे के बारे में सोचती रहती थी, जो उनके बगैर एक लम्हा भी नहीं रहता था। फुप्पो को फिक्र हो गई कि सुरैया का बच्चा उनके बेटे की खुशियों की राह में रुकावट है। कोई ये नहीं जानता था कि ये बच्चा नहीं बल्कि इसका बाप तारिक और उसकी माँ की खुशियों में रुकावट है, क्योंकि सुरैया आपी अभी तक कमाल भाई की मोहब्बत को अपने दिल से न निकाल सकी थी। लेकिन अब्बू ने कमाल से कह दिया, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा फायजा से हिल जाए ताकि मैं सुरैया की शादी तारिक से कर सकूँ। बहन को जुबान दे चुका हूँ, उसका दिल नहीं तोड़ सकता। हाँ, फायजा का रिश्ता अगर तुम कबूल करो तो बदस्तूर तुम मेरे बेटे और घर दामाद होगे और तुम्हारा बच्चा भी हमारे पास ही रहेगा। कमाल मेरे वालिद को रंजीदा नहीं करना चाहते थे और वालिद कमाल भाई को रंजीदा नहीं देख सकते थे। दोनों ही एक दूसरे की खुशी का ख्याल रख रहे थे, लेकिन दिल वीरान दोनों तरफ थे। बिलाखिर कमाल भाई अमन और चैन की अलामत बन गए। उन्होंने बेटे को हमारे सुपुर्द किया और खुद बिरूने मुल्क चले गए ताकि अब्बू अपनी बहन की खुशियाँ बर ला सकें, उनका अपनी बहन से रिश्ता ना टूट जाए। सुरैया आपी ने बहुत वावेला किया कि भांजे से प्यार है, उसी की खातिर जीऊंगी और मरूंगी, मगर शादी नहीं करूंगी। तब फुप्पो ने मसले का हल निकाल दिया कि सुरैया मेरी बहू बनेगी, शादी के बाद भांजे को साथ रखेगी, फुप्पो को कोई एतराज न होगा। सुरैया आपी तारिक के साथ शादी करके खुश ना हुई। वो जिंदा है, मरे बस जी रही है। बाजी का बेटा अब 20 बरस का हो चुका है, उन्हीं को माँ कहता है। तारिक भाई और आपी के साथ रहता है। कमाल भाई ने मुझसे शादी न की और कहा कि इसे मैंने बहन बनाया था तो ये मेरी बहन ही रहेगी। वो आज भी सऊदी अरब में है। जो वो कमाते हैं काफ़ी हिस्सा अपनी कमाई से मेरे वालिद को भिजवा देते हैं। कभी कभी फ़ोन पर बात करते हैं, कहते हैं कि आपने बेटा कहा था तो बेटा बनकर दिखाया है। जब तक जिंदा हूँ आपकी खिदमत इसी तरह करता रहूँगा, लेकिन अपने बेटे को लेने नहीं आऊँगा, ये सोचकर कि कहीं उसको सुरैया से जुदा ना कर दूँ। शफकत पदरी से मजबूर होकर बेटा अपने पास बुला लिया तो उसके पास क्या रह जाएगा? वो पहले ही तही दामन है। सुरैया को अल्लाह ने औलाद ना दी, अब महताब ही उनकी उम्मीदों का मरकज़ है, इसलिए महताब की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकता। आज हम सब अपने घरों में आबाद हैं, लेकिन कमाल भाई अकेले ही मेहनत और मुशक्क़त की चक्की में पिस रहे हैं। उनको किसी ने मजबूर नहीं किया कि वो दोबारा घर ना बसाएं। ये फैसला उनका अपना है, तो कोई क्या कर सकता है। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।